Sir, in today's Business Standard, I have read an article about the uh, bilateral trade deal between India and US that the first phase of this deal can be finalized within 90 days. And the other another news I have read is that IIM Ahmedabad Venture is going to invest 40 crore rupees in 30 deep tech startups. And another news I have read is that the FDI investment is increased 20% in recent 12 months. And also I have read that RBI will purchase the government securities of 40 crore rupees, 40,000 crore rupees. What is government security? Sir, government security is just a debt instrument which is released by government to finance its operations. It's like an loan, which is it is like a proof of loan, which is given by the loan is given by investor to the government. What is FDI? Sir, uh, FDI is foreign direct investment, which means the institution, foreign institution, which is invest in the physical assets of the another country. That may be a real estate or the stock of any company. How is stock of any company will Sir, suppose in India there is a company, so the foreign institution can buy the shares of the company and take ownership. If the institution take 51% of the share, the ownership will be shifted to them. So is it FDI? Yes, sir. Who was US President before Trump? Sir, the US president before Trump is Joe Biden. Proceed with today's topic. Okay, sir. So, sir, today's topic is 5 trillion economy. So, 5 trillion economy is a concept which means that the valuation of GDP of a country is 5 trillion US dollar. In case of India, sir, we aim to reach the 5 trillion economy by the year 2027-28, and that time we will be the third largest economy in the world. If we talk about the Indian economy, the three major contributors of Indian economy is three major contributors are the main contributor is service sector, which contributes around 52%, and the another contributor is service sector, which contributes around 25%, and the last and major contributor is agriculture sector, which contributes around 18 to 20%. Sir, our government has taken many steps toward reaching the goal, like boosting infrastructure with the schemes like PM Gati Shakti, and government is now focusing on urbanization. Government is planning the establishment of new cities, which will which will increase the employment, and also when the cities will be established, the industries will also established. So in this way, GDP will be increased, and also in agriculture sector, government has many decision to uh, like modernize the whole techniques of agriculture. So if we conclude all the things, India will be able to achieve the 5 trillion goal. If the goal of India uh, of achieving 5 trillion economy will be depend on its decision will, about the major sectors like agriculture and
service sector or etc. And the global trade also is an important factor which will impact the GDP of our country. So if we yes, sir, that's it. If we, But I'm trying to say that if we decrease the corruption and uh, the like if the people also contribute to increase its GDP and economy, so we can achieve it within 2 to 3 next 2 to 3 years. Like India is a fast growing economy. how is that going? Are you feeling any difference from what you were before classes, or Yes, sir, I'm getting more confident right now. so you are doing hard work also now? That's why you are getting. Yes, sir, but I am my spoken and communication skills is also increasing because I am practicing every day 40 minutes. That's right. What is NBFC? Sir, NBFC is stands for non-banking financial companies. Sir, uh, it performs like a bank, but without any legal, uh, but without meet any legal terms of bank, like without license. NBFC can't accept the demand deposit. It just lend money or make investment. It is different from banks. What is derivative? Sorry, sir, I am not aware about it. What is derivative? Derivative. Sir, I am unable to recall it right now. Okay. What is balance of payment? Yes, sir. Balance of payment is a statement, sir. Uh, is a statement which is the record of all transactions between an entity and the rest of all world. It Between can be and the not between our country and rest of yes, sir. Sir, in the PDF it is given entity. PDF. It is given entity. Yes, sir. Okay. Between entities in one country and rest of the world. You should read clearly now. See the PDF. Yes, sir. Yes, sir. Sorry, sir. What is domestic systematically important bank? Sorry, sir. I am not. Uh, I didn't recall it right now. Why? Sir, I didn't revise it. Why? Why you have not revised it? I I will revise it, sir, When after the class. After just the class. you should revise daily from origin, from first page. No, Yes, sir. it will hardly take 20 minutes. Yes, sir. First Sir, question I from have now I asked, what is derivative? So derivative name clearly says that deriving the value, that is derivative. जैसे yes, निफ्टी sir. 50 का ऑप्शन है, तो वो किससे लेगा? निफ्टी 50 से वैल्यू ले रहा है, तो उसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं, निफ्टी 50 ऑप्शन। Yes, sir.
डू यू नो व्हाट इज स्मॉल फाइनेंस बैंक? No, sir, not yet. To see what happens firstly, if you want to open any bank like HDFC, suppose, how you can open that? Sir, for that I have to deposit the money around 500 crore. No, actually HDFC is a universal bank, means आरबीआई ने उसको लाइसेंस दिया है यूनिवर्सल बैंक का, तब वो पूरी बैंकिंग सर्विसेज कर पाता है। अब वो वहां तक कैसे पहुंचा? तो जो कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे पहले आपकी 5 साल एज होगी, फिर 10 साल, फिर 15, फिर 20, ऐसे ही पहले पेमेंट बैंक बनता है। जैसे अभी एयरटेल पेमेंट बैंक, कुछ दिन बाद एयरटेल पेमेंट बैंक का अगर ऑपरेशन अच्छा रहेगा तो उसको लाइसेंस मिलेगा। किस चीज का लाइसेंस मिलेगा? वो कन्वर्ट होगा स्मॉल फाइनेंस बैंक में। फिर एज ए स्मॉल फाइनेंस बैंक, जैसे समझ लो फॉर एग्जांपल, पहले उसकी 1 करोड़ कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में 5 करोड़ हो जाएगी। ऐसा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा एक्चुअल नहीं है। 5 करोड़ हो जाएगी। उसके बाद कुछ साल वो स्मॉल फाइनेंस बैंक रहेगा। जब उसमें अच्छा करेगा तो उसको फिर यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस दे देंगे। फिर उसमें 500 करोड़ हो जाएगी कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो जो यूनिवर्सल बैंक का लाइसेंस जो एचडीएफसी को मिला है, वो ऐसे ही मिलता है बैंकों को, इन द सेंस छोटे से बढ़ते हैं ये सब। और स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं जो, वो अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सर्व करने के लिए बनाई जाती है, जो कि बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन का एम है। गेटिंग दिस थिंग? Yes, sir. आरबीआई इनका लाइसेंस इशू करता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको इसमें क्या पढ़ना है? केवल स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है, क्यों बनाई गई थी, कौन सी कमेटी का रिकमेंडेशन, दैट्स ऑल, और नथिंग मोर देन दिस, कि कितना कैपिटल है। दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट कि क्या करती है ये। सो इट कैन एक्सेप्ट एफडी, टर्म डिपॉजिट, आरडी, और लोन प्रोडक्ट्स दे सकती है। ये बेसिकली हर वो चीज करती है जो नॉर्मल बैंक कर सकती है। बस इसमें ऐसे प्रोविजंस होते हैं कि आपको मेजर पैसा किसको देना है? अंडर प्रिविलेज सेक्शन को देना है। बाकी आप वही बैंक की तरह काम करो। दिस इज द थिंग। ये देखिए, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक विल बी रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड 75% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट टू द सेक्टर, जो कि पीएसएल होते हैं। हमने पिछले लेक्चर्स में पीएसएल के बारे में पढ़ रखा है। जो गरीब तबके के लोग होते हैं, फार्मर होते हैं, एग्रीकल्चर वाले होते हैं, एजुकेशन सेक्टर होता है, रिन्यूएबल एनर्जी वाले होते हैं, जिनको कोई नहीं लोन देना चाहता, उनको लोन देना ही कहलाता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। यानी प्रायोरिटी हम करेंगे इन सेक्टर्स। तो नॉर्मल बैंक के लिए वो जो परसेंटेज है ना, कि जितना भी आप लोन दे रहे हो, मान लो 100 रुपए का टोटल लोन मेरी बैंक ने दिया है, जिसमें से 2 रुपए विजय माल्या को दिया है, 50 रुपए आपके पड़ोसी को दिया है, तो ऐसे ही तो कितना उसमें से आउट ऑफ 100 कितना परसेंट उन सेक्टर्स को गया है जो कि प्रायोरिटी सेक्टर वाले हैं। अगर आपकी बैंक स्मॉल फाइनेंस बैंक है तो 100 में से 75 रुपए उन लोगों को जाना चाहिए जो कि गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, फार्मर है, एग्रीकल्चर वाले हैं ना, एंड एजुकेशन वाले हैं, लाइक दीज थिंग्स। छोटे उद्योग चलाते हैं वो, वीकर सेक्शन है इकोनॉमी के, उनको। ये तो स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 75 रुपए है, लेकिन नॉर्मल बैंक के लिए कितना? 40 रुपीज है, 40 रुपीज। 40 rupees. अभी ये 40 रुपीज अभी फिलहाल हाल ही में कुछ रिवीजन हुआ है।
अभी मतलब कुछ हफ्ते पहले जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म्स में रिवीजन हुआ है, तो आई विल रिक्वेस्ट कि प्लीज आप उससे अपने आप को अपडेट करिए। यस सर। क्योंकि उसमें रिवीजन हुआ है तो पैनलिस्ट के भी माइंड में वही चीजें आएंगी जो रिवाइज्ड हैं। वो हाईलाइटेड है ऑलरेडी, से आप पूछ सकते हैं उससे। ये कुछ बैंक के नाम है जो आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे, जैसे यूबी स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। जिसमें से एयू का नाम आपने कई बार सुना होगा, ऐड देखे होंगे इसके। अब देखिए पेमेंट बैंक्स, जैसा कि मैंने बताया पहले, बैंक जो होती है पेमेंट बैंक बनती है ना। पेमेंट बैंक बेसिकली है क्या? ये भी एक फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंक्रीज करने के लिए बनाई गई, और एक छोटे छोटे सेविंग अकाउंट एक्सेप्ट करती है। ये डायरेक्ट लोन नहीं दे सकती है किसी को। गेटिंग दिस थिंग। इसकी कमेटी का नाम क्या है? नचिकेत मोर कमेटी है। आपको कमेटी का नाम याद रखना है। यस सर। और जो इसकी डिपॉजिट लिमिट है वो 2 लाख रुपए है। 2 लाख पर डिपॉजिट पर इंडिविजुअल कस्टमर। और ये क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकती। ये बात अलग है कि अगर ये जो पेमेंट बैंक है किसी थर्ड पार्टी के थ्रू लोन सैंक्शन कराती है, वो तो ठीक है। लेकिन ये क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी सेल्फ बाय सेल्फ प्रोवाइड नहीं कर सकती है। यस सर। अब आता है मोस्ट फेवरेट थिंग, फाइनेंशियल मार्केट। हमारी कंट्री में दो टाइप की मार्केट, एक है मनी मार्केट, एक है कैपिटल मार्केट। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, ये दो टाइप की मार्केट है क्या? तो मनी मार्केट जो है वो 1 साल से कम की मेच्योरिटी वाली जो चीजें हैं, वो मनी मार्केट के अंदर आती है। 1 साल से ज्यादा के ऊपर कैपिटल। अब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं, तो आप शॉर्ट टर्म जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यानी 1 साल से कम, जैसे ट्रेजरी बिल्स हुए, कॉमर्शियल पेपर्स हुए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हुए, तो वो इन मार्केट्स के अंदर आते हैं। ये है क्या चीज, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी। तो कॉल मनी क्या बोलते हैं? जब एक दिन के लिए पैसा दिया जाता है, मैं आपको एक दिन के लिए पैसा ब्याज में दूं, उसको हम कॉल मनी बोलते हैं। नोटिस मनी बोलते हैं जब 2 दिन से 14 दिन के लिए पैसा दिया जाता है। टर्म मनी बोलते हैं जब मोर देन 14 डेज के लिए पैसा दिया जाता है। अच्छा, टर्म मनी में क्या होगा? मोर देन 14 डेज और कितने से लेस? सर लगभग 1 साल। यस, 1 ईयर से लेस। अब देखिए जो टी बिल है वो क्या होता है। तो टी बिल क्या होता है? ये टी बिल है वो गवर्नमेंट इशू करती है। तो गवर्नमेंट टी बिल इशू करती है, और आरबीआई गवर्नमेंट के बिहाफ में उस टी बिल को ट्रेड करता है। बेसिकली एट प्रेजेंट जो टी बिल्स है वो 3 टाइप की है: 91 डे, 182 डे, 364 डे। तो ये जो डेज हैं ये बताते हैं कि जैसे अगर आप 91 डेज का टी बिल खरीदोगे, तो 91 डेज वो मेच्योर हो जाएंगे, कि मेच्योरिटी है ये। जैसे एफडी की यस मेच्योरिटी सर। मिनिमम 1 ईयर रहती है, वैसे ही इनकी मेच्योरिटी है जो इनके डेज से बताई जाती है। 182 डेज में 6 महीने मेच्योर हो जाएगा, 364 डेज में 1 साल के पहले मेच्योर हो जाएगा। और जो टी बिल्स है वो मिनिमम अमाउंट के
10,000, इसको क्रॉस कर लीजिए। 10,000 मिनिमम अमाउंट है और मल्टीपल ऑफ 10,000 में इशू किए जाते यस सर। सर ट्रेजरी बिल्स इज लाइक ए गवर्नमेंट सिक्योरिटी। हैं। यस, बट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर नॉट मनी मार्केट ना। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यस मतलब सर। हमेशा 1 साल से ऊपर का होगा। अदरवाइज वो भी मनी मार्केट में आ जाते हैं अगर 1 साल से कम की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो। दैट इज ट्रेजरी यस बिल। सर। और ट्रेजरी बिल जो होते हैं वो डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं और रिडीम्ड एट पार। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या मतलब इसका? फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज फेस वैल्यू है किसी बिल की, वो मैं आज इशू कर रहा हूँ। उसमें मेरे को उसने बोला कि भाई साहब 364 डेज के लिए 6% का इंटरेस्ट रेट देगा ये। तो हम उसको एक्चुअली जो बिल्स की भाषा में कूपन पेमेंट बोलते हैं, कूपन रेट 6%। इसका मतलब ये है कि वो जो 100 रुपए का बिल है वो 106 रुपये मेरे को देगा 1 साल के बाद। गेटिंग दिस थिंग? यस सर। आज 100 रुपये डाला तो 1 साल के बाद 106 देगा, तो 6% मेरा कूपन पेमेंट हो गया। लेकिन जो ये ट्रेजरी बिल है वो है डिस्काउंट पे इशूड और फेस वैल्यू पे रिडीम। मतलब अगर 6% इंटरेस्ट रेट है, 100 रुपए है फेस वैल्यू ट्रेजरी बिल की, और आज मैं जा रहा हूँ खरीदने 1 साल वाला ट्रेजरी बिल, यानी 364 दिन वाला, तो क्या होगा मेरे को कि वो बोलेगा भाई साहब आप आज 94 रुपीज का ये खरीदो, आज मेरे को आप 94 रुपए दो और 1 साल बाद 100 रुपए मेरे से ले जाना। कितने का प्रॉफिट हुआ मेरे को? 6 रुपये में। 6 रुपए तो पहले भी हो रहा था ना। सर टोटल 12 रुपीज। नो, आई एम नॉट गेटिंग। सी, एफडी में आप एफडी कराने गए, 100 रुपए की एफडी करा रहे हो, 6% इंटरेस्ट रेट है, कितना 1 साल बाद मिलेगा आपको? यस सर। कितना मिलेगा? 6 रुपीज मिलेगा सर। टोटल आज 100 रुपए आप जमा कर दोगे बैंक में, यस एक सर। साल सौ बाद रुपये जाओगे फिर 1 साल बाद। कितना मिलेगा सिक्स एक साल? परसेंट से 6 रुपये। 106 रुपये सिक्स मिलेगा ना। परसेंट से सर। यस सर, हाँ टोटल 106। हाँ, लेकिन ट्रेजरी बिल में क्या होता है? ट्रेजरी बिल में ऐसा होता है कि आपको 94 रुपीज देने हैं आज, और 1 साल बाद आओगे तो 100 रुपए लेके चले जाना। गेटिंग दिस थिंग? सर नोट प्रॉपरली। सर जैसे कि उसकी फेस वैल्यू 100 रुपये है। यस। वो डिस्काउंट मतलब 6 रुपये के डिस्काउंट पे 94 में वो मिला। हम्म। और तो फिर 1 साल बाद उसकी फेस वैल्यू अपने को मिलेगी ऐसा। हाँ, फेस वैल्यू मिलेगी, यस करेक्ट। तो 6 रुपए यस। का हुआ ना प्रॉफिट। यस सर। ये ऐसे ही ट्रेजरी बिल काम करता है, टी बिल्स। सर एक और डाउट है। यस। सर जैसे कि उसकी फेस वैल्यू अभी भी 100 रुपये ही है और वो 94 में अपने को डिस्काउंट पे मिल रहा। पर उसमें मान लो 8% इंटरेस्ट रेट है उस पे, फेस वैल्यू पे तो 102 रुपये मिलेंगे क्या अपने को? अगर 8% इंटरेस्ट रेट है तो 92 रुपये हाँ। मिलेगा ना आज वो। अच्छा 92 में मिलेगा, समझ गया सर। आज 92 मिलेगा, 1 साल बाद आओ तो 100 रुपये ले जाओ। मतलब देखो कितना यस भी सर। इंटरेस्ट रेट हुआ, 1 साल बाद आओगे तो उसकी फेस वैल्यू ही ले जाओगे बस। यस सर। अब जितना रुपए इंटरेस्ट है उतना कम कर लो, उतना पैसा आज देना है, और फेस वैल्यू वाला पैसा 1 साल बाद लेना है। यस सर। कॉमर्शियल पेपर्स, तो कॉमर्शियल पेपर्स क्या होते हैं? इसको लार्जली कॉर्पोरेट्स इशू करते हैं, और इसको भी जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं। व्हाट इज जीरो कूपन बॉन्ड?
I don't know sir about it. अरे अभी बताया तो, जो टी बिल्स इशू हुआ है ना, Yes sir. पहले डिस्काउंट में फिर फेस वैल्यू पे मेच्योर हो रहा है, वही तो जीरो कूपन बॉन्ड। Okay sir. तो जो कॉमर्शियल पेपर्स होते हैं वो मिनिमम 15 डेज के लिए इश्यू किए जा सकते हैं, अप टू 1 ईयर। इनकी जो वैल्यू होती है वो 5 लाख रुपए की मिनिमम। मतलब आपके पास अगर आज की डेट में 5 लाख रुपए है, तो आप मार्केट में जाके कॉमर्शियल पेपर खरीद सकते हैं। Yes sir. मार्केट में जाके कहाँ जाओगे कॉमर्शियल पेपर? Corporates papers. नहीं नहीं, ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जाओगे। भारत बॉन्ड्स, मतलब ऐसी वेबसाइट्स हैं, कुछ ऐप भी हैं, वहां आप जाके इनको खरीद सकते हो। तो मिनिमम 5 लाख रुपए लगेगा आप। ऐसी होती है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है। आप कल जा रहे हो बैंक, 100 रुपए जमा कराया और आपने बोला बैंक को कि अरे भाई साहब मेरे को एक सर्टिफिकेट दो कि मैंने आपको ये 100 रुपए दिए हैं, तो एक सर्टिफिकेट देगा, वही होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। इसकी मिनिमम अमाउंट 1 लाख रुपए होती है, और 7 डे से 1 ईयर तक के लिए इशू किया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 लाख जब आप डिपॉजिट करोगे तभी ये सर्टिफिकेट बनेगा उस बैंक से। Yes sir. गेटिंग दिस Minimum थिंग। 1 lakh. अगर आप 99,000 जमा कर रहे हो तो नहीं मिलेगा आपको। Yes sir. नेक्स्ट इज कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट आपने देखा होगा, जो शेयर मार्केट होता है वही उसी को कैपिटल मार्केट। इसमें दो टाइप के मार्केट होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट, एक होता है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि सपोज मैंने आज एक कंपनी बनाई और पूरा ऑनर मैं ही हूँ, मतलब 100% उस कंपनी के शेयर मेरे पास ही हूँ। लेकिन कल मैं सोच रहा हूँ नहीं नहीं, मैं 1% शेयर बाहर पब्लिक को दे देता हूँ, या किसी अदर फर्म को दे देता हूँ, इन द सेंस पब्लिकली लिस्ट करके। आईपीओ निकाल के, आपने काफी बार सुना होगा कि आईपीओ निकाला है इस कंपनी ने, ठीक है। Yes sir. तो 1% का मैं आईपीओ निकाल के उसमें पब्लिक का पैसा लेता हूँ उसके अगेंस्ट में। तो जैसे ही मैं वो करूंगा तो वो होता है प्राइमरी मार्केट में इंटर करना। तो अब मैंने प्राइमरी मार्केट में इंटर कर लिया है, 1% का शेयर दे दिया है एक किसी पब्लिक के इंडिविजुअल को। अब वो जो इंडिविजुअल है, सपोज आप वो इंडिविजुअल हैं, तो आप अपने पड़ोसी को उधर बेच रहे हैं कि भाई साहब मैंने 100 रुपए में खरीदा है और आज इसकी 105 रुपए वैल्यू है, तू 105 रुपए में ले ले मेरे से। और आपका पड़ोसी मान गया और ले लिया 105 में। तो जो मेरा आपके साथ हुआ, इन द सेंस फर्स्ट टाइम मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में, वो प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। और जो आपने बेचा है अपने पड़ोसी को, उसको सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। मतलब ऑलरेडी इश्यूड सिक्योरिटी को आप ट्रेड करोगे अगर किसी के साथ, एक्सेप्ट मेरे साथ ट्रेड करो। अगर आप ट्रेड करते हो किसी और के साथ, तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। और अगर कोई सिक्योरिटी का ऑनर पहली बार वो सिक्योरिटी को अपने से हटा के किसी और को दे रहा है पब्लिक को, उसको प्राइमरी मार्केट। बॉन्ड Yes तो sir. आपको पता ही है, बॉन्ड क्या होता है। सपोज मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी में अभी मनी की जरूरत है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? या तो मैं 1% शेयर अपना छोड़ के आपको दे दूं और आप मेरे को उसके लिए पैसा दे दो। या मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बॉन्ड क्रिएट कर सकता हूँ। बॉन्ड आपको दे सकता हूँ, जैसे 1 लाख रुपए का बॉन्ड आपने मैंने क्रिएट किया और 7% कूपन रेट लगा के, मतलब, और 1 साल के लिए, मतलब 1 लाख का बॉन्ड 1 साल के लिए 7% कूपन पे, और आपको मैंने दे दिया, तो आप मेरे को तुरंत दोगे आज की डेट में 1 लाख रुपए।
और 1 साल बाद मेरे पास आओगे कि भाई साहब आपने बोला था कि 1 लाख का बॉन्ड है, 7% कूपन पेमेंट है, और 1 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो लाओ मेरे 1,60,000 रुपये अपना बॉन्ड अपने पास रख लो। गेटिंग दिस थिंग? यस सर। जो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हैं वो हम कल पढ़ेंगे। एनी डाउट यू हैव टिल नाउ? नो सर। सर ये जो बॉन्ड है इनमें मतलब डिस्काउंट पे नहीं मिलेगा? अगर डिस्काउंट मिलता है बॉन्ड में, उसी को बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। हाँ सर, वही डाउट था। सब बॉन्ड में नहीं मिलता डिस्काउंट। कुछ सिलेक्टेड बॉन्ड बॉन्ड्स में पे मिलता मिलता है। है जिसको हम बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। उन्हीं में बस मिलता है जीरो कूपन बॉन्ड। यस सर। Any doubt you have till now or previous lectures? Please revise all the things. This is not the good way. Means we are not revising the things regularly. From initial यस सर। from initial phase you have to revise. ओके सर, आई विल रिवाइज फ्रॉम स्टार्टिंग। From फ्रॉम स्टार्टिंग लेक्चर सर। tomorrow or फर्स्ट today? पेज ऑफ द पीडीएफ। सर जस्ट आफ्टर द लेक्चर। Yes, just now. So please revise because the revision is more important, and it will यस सर। absolutely give you a very very good confidence. You know that confidence is necessary the time of interview. Nothing matters there. यस सर। The confidence. यस सर। Thank you. Thank you for joining this. थैंक यू सर।